नमस्कार, मैं उमेश। ना हम पक्ष की बात करते हैं, ना हम विपक्ष की बात करते हैं, समस्याओं के समक्ष की बात करते हैं और इसी से अपनी बात की आज शुरुआत करेंगे। नगर निगम का चुनाव होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं। नगर निगम में विकास होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं। नगर निगम में कौन मेयर चुनकर आएंगे ये भी मुझे पता नहीं। बस एक चीज़ तो पता है, जनता का समस्या। दूसरा समस्या जो सबसे बड़ी मेरे पास है कि हम तो पूछेंगे, ये भी अपने आप में एक मेरे लिए समस्या बन गया इन दिनों, क्योंकि जनता के उठे हुए सवालों को जनता रूबरू होकर हर प्रत्याशी से अपनी बात को पूछ नहीं पाता है। वैसे कंडीशन में फेवर के लिए, जी हाँ, पारिवारिक और अपने नज़दीकी जितने लोग होते हैं वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी की दाव हर परिस्थिति में लगाने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवानी झा के डायरेक्ट समर्थक और पारिवारिक संबंध से एक नया समीकरण जोड़ने के लिए पहले तो उनकी बेटी डॉक्टर नेहा जी। चलिए सबसे पहले हम डीएमसी चुनाव वाली बात पर आते हैं, फिर कुछ चुनावी समीकरण से बात करेंगे। मैम, this is an honorable welcome from my side to you over that. Thank you so much. How do you consider these things, that being a doctor you have to come in politics and support to my mother? See, I think the most important thing is that we are part of the society at large. Whether somebody by profession is a doctor or an engineer, any profession we can choose, but we are part of the society, and to bring change in society, politics is something where you have to participate. Dr. Neha, my mother, why? There is a simple question, that why only my mother? Because I have seen her very closely and she's very honest. Actually, she is your mother, so obviously you will see your mother. Na? And she's But very no, honest. I want the solid answer, why your mother? Because she's the most honest and most dedicated person I have seen in my entire life. She dedicates her life to the poor, to the needy, and this is something which is needed in the mayor of Dhanbad. If you have to select from the mayor side to you, your mother is already standing, your father is already standing. From the both side over that, whom you want to select over there? My mother. Definitely. Definitely. Is it the indication of the woman empowerment? Absolutely. Because the way she has managed her house, the children, the hospital, so many staff, so many patients, so she is capable of managing so many, the big population of Dhanbad as well, because she's capable of doing that. We have seen that in her. That quality is there. Are you ready to backing her? Absolutely. In which condition that you are able to continue the profession of Dr. Shivani Jha as a doctor when she will not be present in her clinic, so how will you manage over there? Because I have been trained in Obs and Gynae as well. I chose IVF because that facility was not present in Dhanbad. Will you be also the Shivani Didi or the Dr. Neha? Definitely I'll try my best, but every person has some quality. So I have my own quality and I have my own responsibilities, but I'll try my best. This is one of the honest statement that I have asked to the Dr. Neha, that if your father is standing as well as mother too, that she told me clearly, so I would like to go with only my mother, because this is only the strong statement from my side too, that woman empowerment is the first quality, and after that I will just select to my father. भैया भी यहीं हैं, बड़ी कील ठोकते हैं गुरुजी आप। नहीं, देखिए कील ठोकने की कोई बात नहीं है। वो अचानक हमको याद आया, एक स्टेटमेंट हमने दिया था कि पुराने मतलब काफ़ी समय पहले एक लोग कहते थे, जो हमारे यहाँ के विधायक भी थे, कि ओपी लाल स्क्रैप हो गए हैं। आप उसी घटने का जिक्र कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि मैं उसी स्क्रैप से बना हुआ कील हूँ जो उनके भ्रष्टाचार रूपी ताबूत में आखिरी कील साबित होऊंगा। ये थी हमारी पंक्ति। अच्छा, राजनीति में एक तो दोनों स्टेटमेंट मुझे लगता है समझ से बाहर की होता है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं, किसको कहें, किसको सुनाएं और किसको अपना समझिए, बड़ा मैंने कंट्रोवर्शियल मैटर होता है दिमाग में। क्या आप भी इससे जूझ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं होता है। अगर हम बोलेंगे, सॉरी टू से, कि अगर आप रिपोर्टर लोग इसको कंट्रोवर्शियल क्रिएट ना करें। ए प्रभु, हम लोग नहीं करें ये तो शिवानी झा की, बिकॉज ये अगर आज आप जितने भी प्रत्याशियों को देखते हैं, एक शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, तो हमको लगता है कि डॉक्टर शिवानी झा अकेली एक ऐसी होंगी, या इन जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े। अरे प्रभु, ऐसे बहुत सारे नेता हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत अच्छा काम किए। वैसे तो बात आप कहेंगे कि नहीं, शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से हम किसी को सामने लाकर खड़ा कर देंगे, उसको नेता बना देंगे क्या आप? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप देखिए, आपका एक चीज़ है कि हमने आपको पहले भी कहा ना कि आप कॉमा और फुल स्टॉप का इंतज़ार किया कीजिए। मैं अभी बोल ही रहा हूँ, माइक आप अपने तरफ ले। नहीं प्रभु, देखिए मेरा तो आज जानना है अशोक लाल भाई, आप खुले मंच पर आज ये बात रखें डंके की चोट पर कि हर हाल में जीत हमारी होगी।
बिल्कुल। देखिए, मैं जिसका नाम लेकर के राजनीति कर रहा हूँ, मेरे स्वर्गीय पिता श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश लाल जी का, और उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। ये थे हमारा डीएमसी का मेयर कैसा हो? शिवानी झा जैसा हो, अगर नाम को छोड़कर बोलेगा, अगर योग्यता वाली आधार पे, तो कैसा? जो पढ़ा लिखा हो, जो साफ़ सुथरी छवि का हो, और इसमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक वैसा शख्सियत होना चाहिए जो अन्याय के खिलाफ बोलना जानता हो। कभी वही तलाश के लिए मेयर दीदी आने वाले शिवानी झा से आप क्या उम्मीद करेंगे? आप डंके की चोट पर आज ये पर जब अपनी बात रखें तो एक बात और कह दें कि कतरास के लिए आप दीदी से क्या करवाइए? देखिए, यहाँ पर मेरा और आंटी का सोच लगभग मिलता जुलता है। अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला भी था कि आज देखिए, लोग कहता है कि नए नए प्रत्याशी हैं। आज जिस तरीके से वो अपने वक्तव्य दे रही थी, उन्होंने जिस तरीके से सलानपुर बस्ती का, छाताबाद की बस्तियों का जिक्र किया कि वहाँ पे पानियों की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि वो महिला भले ही राजनीतिक तौर पर नहीं आप उनको कह सकती हैं, लेकिन समस्याओं से अवगत हैं। क्योंकि उनका खुद का परिवार भी एक राजनीतिक परिवार है। पति और पत्नी में, घर में वो एक माहौल होता है, बातचीत होते रहता है कि आज वहाँ पे ऐसा समस्या, तो हमारा भी वही समस्या है, समस्या का निराकरण चाहते हैं। शिवानी झा जी का राजनीतिक चाणक्य कौन? देखिए, उनके घर में खुद एक चाणक्य हैं, और आप ये बात को भूल रहे हैं कि चाणक्य खुद ब्राह्मण थे, ठीक है ना। शब्द के उतार चढ़ाव से इन्होंने पकड़ा है मुझे कि मैंने जिस शाब्दिक शब्द का प्रयोग कर अंतर्निहित बात से इस बात को जानने की कोशिश की है। एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर अशोक भाई जी ने दिया है। अंतिम एक सवाल डॉक्टर नेहा जी से। मैडम, इंग्लिश में तो बात हो गई, हिंदी में यहाँ के लोगों को आप कैसे अपील करेंगे और संबोधित करें? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी माँ डॉक्टर शिवानी झा यहाँ की बेटी हैं, यहाँ की बहू भी हैं, उनको यहाँ की समस्याओं का ज्ञान है, और सबसे ज़रूरी बात कि वो बहुत ईमानदार हैं, सच्ची हैं, कर्मठ हैं, और आप सबों के प्रॉब्लम को जिस तरह एक डॉक्टर की तरह उन्होंने हर मरीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, कतरास की सारी प्रॉब्लम्स को, धनबाद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप देखिए, ये अगर आप ये कहते हैं कि शिवानी झा जी ही क्यों, तो मैं कहूँगा कि देखिए, वो एक सर्जन है, और सर्जन को पता होता है कि कहाँ पर चीड़ फाड़ लगाना है और समस्या का निराकरण करने के लिए, तो वो सबसे बेहतर जानती हैं कि किस समस्या को कहाँ से चीरा लगाना है और कहाँ से सिलाई लगाना है। शिवानी आंटी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैंने बहुत पहले एक बात कहा है श्रीमान, डीएनए बदलता नहीं है, और डीएनए का ही ये मुझे लगता है सॉलिड प्रभाव है जो कि शब्दों का उतार चढ़ाव समीकरणीय भाव से अशोक भाई जी यहाँ कर ला कर रखते हैं। कोशिश तो मेरी होती है कि मैं भी इनको गोल मटोल अपने सिक्के जैसे उछाल में फंसाऊं, लेकिन बात वही आती है, शोले फिल्म में आपने देखा था, हेड भी इन्हीं का और टेल में चिपकाया हुआ हेड भी इन्हीं का। चलिए, धन्यवाद। डीएमसी के चुनाव में बहुत सरगर्मियां बढ़ रही है, टेम्परेचर ठंडा में भी ऊपर की ओर ज़्यादा श्रीमान। अब थोड़े समय में पता चलेगा, पहले कि अभी नोटिफिकेशन के माध्यम से चुनाव अभी नज़दीक है या देर है। जय हिंद।